تو ادھر جو ہے پیراڈائز کے اندر، گلبرگ کے اندر، ڈیفنس کے اندر، کسی نہ کسی سوسائٹی کے اندر ایک پلاٹ کو بک کرتے کرتے اس کو بناتے بناتے اپنی زندگی کے 70 سال گزار دیتے ہیں. اپنے بچوں کا برائٹ فیوچر دیکھتے دیکھتے ہماری زندگی کی دہائیاں گزر جاتی ہیں. 50 سینچری مار کے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ گمان نہیں کیا کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں پہ کوئی مرلہ، کوئی انچ، کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی بنگلہ، کوئی سہولت وہاں پہ کوئی میں نے پیدا کی ہے. میں نے اس قرآن کو کوئی ٹائم دیا ہے، میں نے اس کی دعوت کو کبھی پیش کیا ہے. حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل خاتم الانبیاء ہے. اور قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. یہ لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے، بے راہروی سے نکالتا ہے. یہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. جو تدبر کرے گا، جو غور کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، اس کے مقام کو، فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے. اور یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. اور یہ قرآن مجید یہ معاشرہ بناتا ہے. دنیا کو چلانے کے لیے دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسان، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دنیا کے کتنے بھی انسان ہیں، کتنی بھی اقوام ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے، فطری طریقے سے چلانا ہے، معاشرے کا امن قائم کرنا ہے، معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، انسانوں کی پہچان ہو، احترام ہو، تو وہ یہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر لاریب ہے، جو تورات کی، زبور کی، انجیل کی، صحیفوں کی، صحیفہ ابراہیم کی تصدیق کرتی ہے، سابقہ انبیاء کی رسالت کو، اس کی تصدیق کرتی ہے. لیکن یہ آخری کتاب ہے اور اتنی بابرکت ہے، اس کو جہاں پڑھا جائے وہاں پہ برکات نازل ہوتی ہیں. اور یہ قرآن اللہ نے اس کو شفا بھی کہا ہے، بیماریوں سے شفا بھی اس سے ملتی ہے، دلوں کا زنگ بھی اس سے اترتا ہے، معاشروں کا بگاڑ بھی اس سے ختم ہوتا ہے. معاشرہ بنتا ہی وہ ہے پاکیزہ، تطہیر والا، اخوت والا، بھائی چارے والا، امن والا، سلامتی والا. وہ معاشرہ بنے گا جس کے اوپر قرآن کو تسلیم کیا جائے گا کہ یہ دستور ہے، یہ قرآن کو مانا جائے گا، اور اس کے اندر اقوام، ان کی ترقی، ان کی خوشحالی، اقوام کا زوال، اقوام کا عروج، قوموں کی غلطیاں، قوموں کی صفات اور خوبیاں، انبیاء کی دعوت، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सब की तस्दीक और उस दावत को और सारे अंबिया की दावत जो मुश्तरक रही, वो दावत तौहीद। और माशरे तबाह कैसे हुए, माशरा बिगड़ा कैसे, अकवाम तबाह कैसे हुई, इबरत का निशान कैसे बनी, किन गलतियों की बुनियाद के ऊपर कौमें, मुल्क और इलाके तबाह हुए, उसकी निशानदेही ये किताब करती है। और इसके ऊपर किसी को कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये एक ऐसी किताब है। लेकिन अफसोस के बाद कि आज मुसलमान इस किताब से कोसों दूर है। मुसलमानों के मुल्क इस किताब के कानून से बहुत दूर हैं। इस किताब को सुप्रीम इदारों के अंदर जो इसका हक हासिल था वो नहीं दिया गया, इसको लागू नहीं किया गया। मुल्कों का आइन और कानून ये कुरान नहीं बनाया गया। अकवाम ने इस वक्त तक मुसलमान जो लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर हैं, रियासतों की काउंटिंग की जाए 56-57 मुसलमानों की रियासतें हैं। और जिस रियासत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज आप खुतबा जुमा तिब्बा बदर शहर में पढ़ रहे हैं, ये रियासत अल्लाह का इनाम, ये सरजमीन पाक शाद, इसके अंदर आज हम मौजूद हैं। ये रियासत भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर ली गई थी। इस रियासत के अंदर भी कुरान और सुन्नत का निजाम हमें मिल नहीं सका। कुरान को हम बेहैसियत मुसलमान इनफरादी तौर पर अपने माशरे में, अपनी हट्टी पे, अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री में, अपने 5-7 मरला 2.5 मरला घर के अंदर कुरान को हम जगह नहीं दे सके, कुरान को माशरे का हिस्सा नहीं बना सके। रस्म और रवाज ने कुरान जगह ली माशरे के अंदर, दुनियादारी ने माशरे के अंदर जगह ली, झूठ ने अपनी जगह बनाई इस माशरे के अंदर, फरेब ने, ठगी ने, धोखे ने, इसने माशरे के अंदर जगह बनाई। खुशी गमी के अंदर रस्मो रवाज की भीड़ चला ये माशरा और ये पाकिस्तान और आवाम पाकिस्तान। ये किताब, इसको हम तरावी में सुनते हैं, वो भी हाफिज की ज़बानी। इस कुरान से जो हमारा सलूक है वो रमजान में जिनको अल्लाह नसीब करता है, वो भी कुछ परसेंटेज है मुसलमानों की जो पढ़ती नहीं सिर्फ सुनती है, वो भी 5% हो सकते हैं, 7%, 10% हो सकते हैं। वो रमजान में इस कुरान के अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक, कोई 25 कोई 26 दिन में, कोई 27 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 29 दिन में इस कुरान को सुनता है, कोई जल्दी में, कोई आस्था में, किसी को अल्लाह ताला तौफीक देता है तो वो पढ़ता है। हालांकि ये किताब जिस दुकान पे, जिस फैक्ट्री में, जिस घर में पढ़ी जाए वहां बरकत आती है, अल्लाह की रहमत आती है। कुरान जो ज्यादा पढ़ता है उसका दिल साफ होता है। दिलों के जंग उतारने की किताब कुरान है, दिलों को शिफा देने वाली किताब कुरान है। लेकिन आज हम मेडिसिन लेते हैं, इत्मीनान नहीं है, डिप्रेशन का शिकार है, हम बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। कभी सोचा कि इत्मीनान कल्ब जो है वो किस तरीके से हासिल किया जा सकता है? दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के कुरान पढ़ने में है, अल्लाह के कुरान की तिलावत करने के अंदर है। लेकिन कुरान मजीद, इसको हमने समझा भी नहीं, या तो इसको हमने ऊंची अलमारी में रखा हुआ है, काफी सारे लिहाज के अंदर लपेट कर रखा हुआ है, जो साल बाद खोला जाता है, कभी कभार खोला जाता है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं। अगर पढ़ लिया है, अल्लाह ने तौफीक दी है, इसके ऊपर बड़ी नेकियां हैं, फिर हमने इस कुरान को समझा नहीं है। हमें एग्रीकल्चर समझ आता है, बीएससी हम अपने बच्चों को कराते हैं, एमएससी करवाते हैं, डिग्रियां हासिल करवाते हैं, एलएलबी करवाते हैं, काउंटिंग की कॉमर्स में हम बड़ी डिग्रियां लेते हैं, सूद को लिखने में, गवाही देने में, इसके ऊपर हमारी बड़ी डिग्रियां मौजूद हैं।
जॉब्स के चक्कर में 5-5 साल 7-7 साल डिग्रियां मौजूद हैं, 16 साल 17 साल का एक जिंदगी का जवानी का एक हिस्सा हम लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है वो पढ़े समझे सीखे, लेकिन उसके अंदर क्या वो बच्ची जो यूनिवर्सिटी की दहलीज पे अपना पांव रख रही है, क्या उसको सूरत नूर तर्जमे के साथ आती है? वो बच्चा जो अपनी जवानी को छू रहा है, बीए के अंदर गया है, बीएससी के अंदर गया है, एमएससी के अंदर गया है, बीएस मैथमेटिक्स कर रहा है, किसी भी जो है माशरे के किसी भी हिस्से को वो चलाएगा, क्या उसने इस कुरान मजीद से सूरह हुजरात 26वें पारे के अंदर आदाब जिंदगी, माशरे के आदाब क्या हैं, इंसानों पे हकूक क्या है, पड़ोसियों के हकूक क्या है, भाई के ऊपर हकूक क्या है, माशरा कैसे बनेगा, माशरा तबाही से कैसे बचेगा, और अखुवत और भाईचारे के ऊपर माशरे को कैसे कायम किया जाएगा, भाई की इज्जत क्या है, बहन की इज्जत क्या है, बेटे की इज्जत क्या है, पड़ोसी की इज्जत क्या है, बात कैसे करनी है। ये आदाब जिंदगी के ये चैप्टर मैंने, जिसको अलजबरा, जिसको मैंने अंग्रेजी, जिसको मैंने मेडिकल, जिसको मैंने साइंस पढ़ाई है, जो इकोनॉमिक्स में आगे गया है, वो नहीं पढ़ सका इस कुरान को, वो इस कुरान को नहीं समझ सका। तो आज दुनिया में कुरान की तौहीन हो रही है, आए दिन ये करते हैं। टेरी जॉन्स ने भी ये काम किया था, नॉर्वे के अंदर भी खाके बने थे। अब स्वीडन ने कुरान को सरकारी सतह पे जलाया है। जिसने कुरान के मकामात को पढ़ा होता, इसके अंदर जन्नत के नजारों के अंदर से गुजरा होता और अल्लाह की जन्नत जहन्नम की हौलनाकियों के तस्वुरात उसके ज़हन में बैठे होते, वो कुरान के लिए उठता, इसकी तालीम के लिए उठता, इसके लिए लोगों के सामने अपनी बात को पेश करता। आइए उन काफरों से जिनसे हम शिकवा करते हैं ये कुरान चलाया है, उनकी तो खासियत ये है, उनकी तो जबानें ऐसी हैं, उनकी तो तरबियत ही ये है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, और हमारा माशरा तरक्की याफ्ता बनना चाहता है। हम पॉलिटिक्स में यूरोप को कॉपी करते हैं, हम रस्म और रिवाज में अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से मेहंदी की रस्म, शादी की रस्म, खतने की, हकीके की, ये सारी रस्मों के अंदर हम गुजरते चले जाते हैं। हम माशरती तौर पर कुछ माशरा हिंदुस्तान, चूंकि वहां से हम माइग्रेट करके आए हैं, वहां से हम हिजरत करके आए हैं, कुछ माशरे की रस्म और रिवाज हम हिंदुस्तान से लेते हैं। पॉलिटिक्स, हमारे मुल्क के लीडरान उसको वो सियासत जो है वो यूरोप से लेते हैं, और तालीम, एजुकेशन, वो हमको एजुकेशन का निजाम और मुख्तलिफ निजाम जो है मुख्तलिफ मुल्कों से लेते हैं। माशरे की तश्कील वो हम कहीं से लेते हैं, लेकिन हमने इस कुरान को और इस इस्लाम के इस निजाम को नहीं समझा। तो आज अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिनसे हम दोस्तियां करते हैं, मुल्क मईशत में तबाह होता चला जाता है, और फिर हम कशकोल उठा के IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अपने चंद एक मिनट के अंदर कुरान मजीद की इब्तदाई तमहीद के हवाले से बात की, तो अब इसके ऊपर हम बात करेंगे कि हमारे दोस्त कौन होने चाहिए, हमारे दुश्मन कौन होने चाहिए, और हमारे साथ हो क्या रहा है। इसके ऊपर ना हमारे लीडरान हमें बताते हैं, ना हमें खुद इस पे नॉलेज लेने की जरूरत है। हाँ, हमें टीवी चैनलों के तबसरे हम देख रहे हैं, पार्टियों को डिफेंड कर रहे हैं, कोई PTI को डिफेंड कर रहा है, कोई नून लीग को कर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी का जाला है, और इसके ऊपर पूरा मुल्क घुमा हुआ है, पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है, इसके ऊपर हम खड़े हैं। हमारे साथ वो क्या रहा है? अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला। वाले ईमान से अल्लाह ने खिताब किया है, और अहले ईमान का ये मुल्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर ये हासिल किया गया है। इसमें हुक्मरान मुखातिब हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, ईमान लाने वाले सब मुखातिब हैं, अवाम मुखातिब हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ ईमान वालों, अपने ईमान के अलावा किसी को वली दोस्त ना बनाओ, और फरमाया कि तुम देखते नहीं वो तुम्हारी तबाही में कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, वो
तुम्हें तबाह करने में, तुम्हारे माशरों को तबाह करने में, तुम्हारे इदारों को, तुम्हारे मुल्क को तुम्हें तबाह करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाना। यहां तो हम कहते हैं कि हम उनके बगैर चल ही नहीं सकते। ये तो मुल्की जो है ना सियासत के अंदर भी, मईशत के अंदर भी, हर चीज के अंदर हमें कॉपी करने की जरूरत है। यूरोप की मिसालें हम देते हैं, यूरोप के माशरे का तस्करा हम करते हैं, किसी के पास बैठ जाए उनके कवानीन का तस्करा हम करते हैं। यूरोप को कवानीन हमने दिए, यूरोप को माशरा हमने दिया, यूरोप के रहन सहन के तरीके और वहां पे जो कवानीन है वो आज देख ले। उमर लाज के नाम से बरतानिया के अंदर भी आज कवानीन मौजूद है कि बच्चा पैदा होगा तो उसका वजीफा हुकूमत वक्त जारी करेगी, चादर चार दीवारी, पुलिस का निजाम, ये इस्लाम ने दिया था, लेकिन आज इसको फॉलो नहीं किया जाता। और आगे फरमाया कि जो उनके सीनों में है, एक तो है वो अपनी जबान से मुखालफत करेंगे, वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, सुपरलेटिव डिग्री अल्लाह ने इस्तेमाल की कि जो उनके सीनों में है, काफरों के सीनों में तुम्हारे बारे में बुग़्ज़ है। अल्लाह अकबर, जिस तरह हम अजान में कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, अल्लाह कहते हैं जो उनके सीनों में तुम्हारे बारे में बुग़्ज़ छुपा हुआ है वो बहुत बड़ा है। यहां पे अल्लाह ताला ने वो बात बयान की है, फरमाया तुम्हें अगर भलाई मिले तो ये नाखुश होते हैं, हाँ अगर बुराई पहुंचे तो ये खुश होते हैं, बगले मारते हैं। और तुम अगर सब्र करो और परहेजगारी करो तो इनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान ना दे सकेगा। अल्लाह ताला ने इनके अमाल का अहाता कर रखा है। अल्लाह ताला ये जो जुल्म करते हैं, साजिशें करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, नाइंसाफियां करते हैं, ये सारी चीजों से, काफिरों के इस अमल से अल्लाह ताला बखूबी इल्म रखता है, उसको अपने हाथे में किए हुए है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसलमानों को अगर कोई खुशी पहुंचती है तो काफिर इसके ऊपर बड़े गमज़दा हो जाते हैं, और जब गम पहुंचता है फिर शादाने बजाते हैं, वो खुश होते हैं। तुम्हारी मईशत को नहीं वो देख सकते फैलता फूलता, तुम्हारे मुल्क को चलता हुआ वो नहीं देख सकते। तुम इकट्ठे बैठ जाओ, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, पॉलिटिक्स पार्टियां सारे इकट्ठे हो जाओ, माशरे के अंदर इस्तेकाम आ जाए, रोजी रोटी आना शुरू हो जाए, सारे लोग जो है मेहनत करें इस्लाम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, अपनी नस्लों के लिए काम करें, काफिरों को ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद के अल्लाह ने कहा है। ये कुरान ये बातें मुसलमानों को बताता है। इस कुरान को उन्होंने जलाया है, पहले भी जलाया। कुरान को नाउज़ुबिल्लाह दहशतगर्द डिक्लेयर किया, और वो कहते हैं कुरान जो है, कुरान के बारे में मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लेके आते हैं, लेकिन मैंने ज्यादा उसके ऊपर बात करने की बजाय अपने आप के ऊपर बात की है कि हमारा जिस कुरान को वो समझ के इस कुरान के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुरान अल्लाह के फजल से यूरोप में उससे ज्यादा पढ़ा जा रहा है। लोग इसको पढ़ के इस्लाम में आ रहे हैं, मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया जा रहा है, चर्च खरीदे जा रहे हैं, मुसलमान होते हैं लोग सीरत को पढ़ते हैं। इन्होंने नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इन्होंने खाके बनाए तो लोगों ने अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ा कि आप भूखों को खाना खिलाने वाले, आप यतीम के सर पे हाथ रखने वाले, आप अपनी कमाई से लोगों की मदद करने वाले, अपने हाथ से लोगों की मदद करने वाले, आप नवाइबिल हक की दावत देने वाले, आप मुसीबत ज़दा के काम आने वाले, आपके आला अखलाक, आपके आला किरदार, आपके रवैयों से वो मुतासर हुए, इस्लाम को कबूल किया। आज भी यूरोप के अंदर कोई चर्च बिकता है तो मुसलमान उसकी कीमत अदा करके उसको मस्जिद में तब्दील करते हैं। लेकिन अजीज भाइयों, हमारी बेहसीयत मुसलमान, बेहसीयत एटमी पाकिस्तानी होने के लिहाज से हमारा जो किरदार है वो पॉलिटिकली तौर पर ले लें, सियासी तौर पर ले लें, माशरे के तौर पर ले लें, 5 मरले के घर के सरबराह से लेके, फ्रूट की रेड़ी लगाने वाले से लेके, इंडस्ट्री चलाने वाला, शुगर मिल का मालिक, पार्लियामेंट में बैठने वाला, बड़े इक्तदार का मालिक, एक छोटे से बंदे से लेके पीएम के ओहदे तक आप चले जाएं, नाइंसाफियां हम करते हैं अपने मर्तबों से, अपने मकाम से।
अपने कदकाठ से हम इससे इस मुल्क के साथ भी, अपने माशरे के साथ भी नाइंसाफियां करते हैं। वो किरदार जो उम्मत का होना चाहिए, जो यकजहती का होना चाहिए, जो अखुवत और भाईचारे का होना चाहिए, वो किरदार हम नहीं अदा करते। और ये कुरान जिसको मेरी जिंदगी में अहमियत और हैसियत हासिल होनी चाहिए, इस कुरान को वो हैसियत हासिल नहीं है। ये कुरान रमजान में पढ़ा जाएगा, वो भी हाफिज मुसल्ले के ऊपर पढ़ेगा, हम उसकी 27 को मिठाई खाएंगे। विरासत को हम नहीं पढ़ेंगे कि बहनों का हिस्सा इस कुरान में क्या बताया गया है। आखिरत की होलनाकियों से हम नहीं बाखबर कि वहां क्या होने वाला है। 50,000 साल का दिन शुरू होने वाला है। जन्नत की अजीमो शान नेमतों को हम नहीं पढ़ेंगे कि अल्लाह की जन्नत कितनी वसी और अरीज है। अल्लाह ने इन बंदों के लिए, इन इंसानों के लिए जो जन्नत बनाई है, अहले ईमान के लिए, जो अल्लाह की मान के आएंगे, रसूलुल्लाह की मान के आएंगे, उसके लिए अजीम शान जन्नत तैयार कर रखी है, बगले बना रखे हैं। हम तो इधर जो है पैराडाइज के अंदर, गुलबर्ग के अंदर, डिफेंस के अंदर, किसी ना किसी सोसाइटी के अंदर एक प्लाट को बुक करते करते, उसको बनाते बनाते अपनी जिंदगी के 70 साल गुजार देते हैं। अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर देखते देखते हमारी जिंदगी की दहाइयां गुजर जाती हैं। 50 सेंचुरी मार के हम इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये गुमान नहीं किया कि जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, वहां पे कोई मरला, कोई इंच, कोई जगह, कोई मकाम, कोई बंगला, कोई सहूलत वहां पे कोई मैंने पैदा की है। मैंने इस कुरान को कोई टाइम दिया है, मैंने इसकी दावत को कभी पेश किया है। उम्मत इज्तिमाई तौर पर अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर से बिल्कुल गाफिल हो गई। और गाफिल उम्मत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पहले अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम करो, इससे पहले कि तुम अल्लाह से मांगो अल्लाह तुम्हें अता ना करे, इससे पहले कि अल्लाह से तुम दुआएं मांगो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करना बंद कर दे, इससे पहले तुम अल्लाह के दीन की दावत का काम करो। ये नहीं है कि हमने ये चंद मौलवियों को काम दिया हुआ है, नहीं। जहां हम काम करने जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, काम काज करते हैं, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान वहां नजर आना चाहिए। इस कुरान से मोहब्बत करें। जो कुरान से मोहब्बत करता है, शान कुरान के अंदर बड़ी आयात हैं, बहुत सारा अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं कि ये कुरान नूर बन के बंदे को कल क़यामत के दिन आगे आगे रोशनी बन के चलेगा। और अंधेरों के अंदर कल क़यामत के दिन ये रोशनी बन के जाएगा। ये अल्लाह के हाथ सिफारिश करेगा। जिसने इसको माना, समझा, अमल किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत के अंदर झगड़ा करेगा कि या अल्लाह, ये रातों को मुझे पढ़ता था, इसने माना था, जिंदगी में मुझे जगह दी थी, ये पढ़ता था, इस मेरे ऊपर अमल करता था, आज मैं इसके हक में सिफारिश करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कुरान की सिफारिश को बंदे के हक में कबूल फरमा लेगा। और जो इसको पसे पुश डाल देगा, कुरान को भुला देगा, अल्लाह ताला फिर उसके खिलाफ ये कुरान उसके खिलाफ गवाह बन के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान की जो हमारे खिलाफ गवाही है उससे महफूज रखे। तो इसलिए मेरे भाइयों, बच्चों को भी हम कुरान पढ़ाएं। और ये जो स्वीडन ने अमल किया है, ये इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हमने रैली निकाली है, आप भी इसी अजमत कुरान के हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम आप भी होंगे। आप भी इस कुरान की दावत के प्रोग्राम और कुरान की जो बेहिम्मती उन्होंने की है उसके खिलाफ प्रोग्राम। अभी भी एक फरीद गेट के ऊपर रैली जा रही है। मेरे पास TLP के दोस्त आए हुए थे दफ्तर में अक्सा मस्जिद में कि इंशाल्लाह आज हम कर रहे हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह हम उसमें भी शामिल होंगे। कुरान सबका है, ये दो बंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों का नहीं, सब मुसलमानों का कुरान है। इसकी अजमत के लिए हम सब निकलेंगे। तो अल्लाह के फजल से हमने 2 दिन पहले भी ये रैली निकाली है और फिर इंशाल्लाह इसके बकायदा प्रोग्राम कर रहे हैं। बड़ा प्रोग्राम एक हम करने जा रहे हैं। लेकिन होता ये है, हम समझते हैं कोई प्रोग्राम है, कश्मीर डे आ गया है, या कोई इस तरह का पाकिस्तान के नजरिए के हवाले से है, माशरे की बेहतरी के हवाले से है। हम ये पार्टियां प्रोटेस्ट करती हैं अपनी पार्टी के लिए। लोगों के पास टाइम नहीं है, आम लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर कुरान के लिए बुलाया जाता है, कश्मीर के लिए बुलाया जाता है, पाकिस्तान के लिए बुलाया जाता है, तो हम वक्त नहीं देते। हम कहते हैं कि ठीक है, उस जगह से, इस मस्जिद से 3 बंदे हमारे चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। और भाई हम एक ताकत बन के तो खड़े हों, हम निकलो तो सही। लोग अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने लीडरान के हक में। कोई किसी पार्टी का तो पार्टी मुफादात के लिए कर रहा है, दूसरी पार्टी का तो वो अपने पार्टी मुफादात के लिए है।
और भाई कोई काश ठीक है पॉलिटिक्स के अंदर सियासत के हवाले से कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा देता है, कोई अदल इंसाफ का नारा देता है, कोई जो है ना मुल्क को चलाने की तरक्की की बातें करके इस कौम को 75 साल से उल्लू बनाए हुए है। लेकिन किसी से मुतालबा तो करें कि तुम 75 साल में इक्तदार में हो और कभी कुरान के लिए तुमने कोई रैली निकाली है? तुम्हारे दिल नहीं जले, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंची जब अल्लाह के किताब को आग लगाई गई? स्वीडन के लोगों ने सरकारी हैसियत में जिस 30 पारों को तुम पढ़ते हो, जिनको तुम समझते हो ये राय अदायत है, ये हमारी हदायत की किताब है, कल क़यामत के दिन इसने हमारी सिफारिश करनी है, उसको जलाया गया है और तुम अपनी अपनी रैलियां और अपनी अपनी सियासत के अंदर मगन हो। सवाल तो हम करें। आज मेरे अजीज भाइयों, इसके हवाले से मैं आपसे भी अर्ज करता हूं कि इंशाल्लाह हम एक बड़े प्रोग्राम की कॉल देंगे और वो किसी जमात के लिए नहीं होगी, किसी लीडर के लिए नहीं होगी, वो इस किताब के लिए होगी। इस किताब के लिए मानते हैं इसको सब भाई ना? हम सब मानते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी जान इसके ऊपर कुर्बान है। तो क्या ख्याल है जब इस किताब के लिए आपको कॉल दी जाए कल की परसों की, फिर दुकान इससे बड़ी हो सकती है, नौकरी इससे बड़ी हो सकती है, घर इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ी कोई मजबूरी हो सकती है। अल्लाह की कसम ये किताब दुनिया में भी हमारे लिए निजात का जरिया है। इस किताब के जरिए से हमें इज्जतें मिलनी है और कल क़यामत के दिन भी यही किताब है जो हमें बचाएगी। इसके ऊपर अमल किया होगा। तो क्या ख्याल है जब इस किताब के लिए आपके पास कॉल पहुंचेगी तो फिर आप अकेले शमसल आपको भेजेंगे? बताएं, आएंगे? हाथ खड़ा करें। मैं किसी सियासी जलसे की आपसे नहीं ले रहा वादा, ऊंचा करें इस किताब के लिए, सब आएंगे इंशाल्लाह। हमारे ईमान का तकाजा ये है। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को, जो जिसकी निशानदी मैंने अपनी गलतियों की है, ये सारी तकरीर मैंने अपने ऊपर की है, अल्लाह हमें इस कुरान से वो मोहब्बत अता फरमा दे। कल क़यामत के दिन जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसके साथ खड़ा होगा। अगर अल्लाह ने हमारे दिल में इस कुरान की मोहब्बत डाल दी, इस किताब से हमें मोहब्बत हो गई, इसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अपने घर में तर्जुमा कुरान क्लास शुरू कर ली, अपनी कॉलेज के अंदर जाने वाली बेटी, यूनिवर्सिटी की दहलीज पे पांव रखने वाली बेटी जिसके ऊपर हमने बड़ा ट्रस्ट किया, क्लासों में भेज दिया और मजबूरी है उसने एजुकेशन हासिल करनी है, अगर उसको हमने सूरह नूर का हया पढ़ा दिया, अपने बेटे को आदाब जिंदगी 26वें पारे में सूरह हुजरात पढ़ा दी, शर्मो हया पढ़ा दिया, ईमानदारी के सारे तकाजे पढ़ा दिए, इंशाअल्लाह कल को किसी शोबे में जाएगा तो वो रिश्वत नहीं लेगा, बेईमानी नहीं करेगा, ठगी फरेब नहीं करेगा, आंख उठा के किसी गैर महरम को नहीं देखेगा। हमारी बेटियां माशरे को जो है बदकारी की तरफ नहीं लेके जाएंगी, जो सूरह नूर को पढ़ेंगी, जो कुरान मजीद को पढ़ेंगी, जो हया के दर्स को पढ़ेंगी, जो अखलाकियात को पढ़ेंगी, जो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सदाकत को पढ़ेंगी, जो खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत को पढ़ेंगी, जो हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह वो शर्मो हया का पैकर बनेंगी। इंशाअल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं तय कर लूं, मैं 40 साल का हो गया हूं, क्या 40 साल में मैंने ये किताब पढ़ ली एक दफा तर्जमे के साथ? मैं अभी नहीं पूछता, इसमें हम सब कमजोर हैं। सोते वक्त मैंने पूछना है अपने आप से कि ये 40 साल का मैं आ गया हूं। कोई डिग्रियों वाला है तो डिग्रियों वाला, कोई मजदूरी वाला है तो उसको मजदूरी में एक्सपीरियंस है, कोई कारोबारी है तो वो रुपए के साथ रुपया जोड़ता है। लेकिन इस किताब को 40 सालों में अगर मैं एक दफा तर्जमे के साथ उर्दू में तर्जमा इसका नहीं पढ़ सका तो मेरे लिए सवाल है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाह अजीज भाइयों, जिस तरह मैंने खुतबे के आगाज में किताबुल्लाह की बात की, आखिर में भी, दरमियान में काफरों की साजिशें जिस अंदाज में, जिस कदर वो शदीद हैं, गुस्से के अंदर, गमो गुस्से के अंदर, हर मौके के ऊपर, हर महाज के ऊपर काफरों की ये जहनीत है कि वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करे, माशरे को तबाह करें, इकोनॉमी को तबाह करें, मुल्कों को तबाह करें। इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग से गुजर रहा है और मुसलसल जंगों के अंदर है। जब से पाकिस्तान 47 से बना है, कभी वेपन जंग में, कभी सोशल मीडिया की जंग में, कभी सियासत के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमें समझ नहीं आ रही होती।
تو ایسے وقت میں ہم نے اپنا، اگر ہم خاموش رہے، ہم کردار ادا نہ کر سکے، خدمت کو عبادت سمجھا ہے، دریاؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں، رات کے 12 بجے بھی پانیوں سے گزر کے سیلابوں میں لوگوں کو نکالا ہے۔ ہم نے دنیا کے قوانین کو نہیں پڑھا، ہم نے انسانیت کو پڑھا، اور انسانیت کے لیے ہم بہت آگے تک گئے ہیں، اس کے اوپر کام کیا ہے۔ اب سیاسی طور پر ملک عدم استحکام کا دوچار ہے۔ پولیٹیکل لیڈرز آج پاکستان کے اندر اس کا بحران ہے، اور ہماری چوائس اور ہمارا کام، اب کام کریں جیت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، ہم جو چلیں گے انشاءاللہ اس معاشرے کے ہر طبقے کی اصلاح اور اس کی خدمت، تعلیم، ہنر، تربیت، حیا، اخلاق، سیاست اخلاق کے ساتھ، سیاست کردار کے ساتھ، سیاست حیا کے ساتھ، یہ سلوگن ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اگر بے حیائی کی سیاست ہوگی، جس کو اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے میں ٹی وی پہ دیکھ نہیں سکتا، جس پارلیمنٹ کی لینگویج کو میں اپنی باحیا بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے سن نہیں سکتا، جو عوامی نمائندہ 1 لاکھ سے اوپر کے ووٹ لے کے اسمبلی میں جو بول رہا ہے، اس کے الفاظ کو میں اپنی فیملی میں بیٹھ کے سن نہیں سکتا، جس کی پوسٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر میری آنکھیں دیکھنا گوارا نہیں کرتی، جو سیکٹیرین پالیٹکس کی جا رہی ہے، فرقہ واریت کی پالیٹکس اس پاکستان کے اندر، قتل و غارت کی، انتقام کی سیاست، اس میں کسی پارٹی ایک کی میں بات نہیں کرتا، اوورآل ہمارا نظام خراب ہو چکا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر آپ مسجد تک محدود رہیں گے کہ بس ہم نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو پھر دیکھیے ہم رات کو سوئے تھے، کہتے ہیں 1 روپیہ بڑھے تو پتہ نہیں 1 ارب جو ہے نا، 1 ارب سے پتہ نہیں 3 ارب کے قریب، ہمیں 1 روپیہ ڈالر بڑھنے سے پوری قوم مقروض ہو جاتی ہے۔ 2500 ارب کے ہم ایک رات میں مقروض ہو گئے۔ رات کو سوئے تھے، ڈالر کچھ تھا، صبح 25 روپے بڑھا ہوا تھا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ 1,25,000 کا مقروض تھا، تو اب وہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اور معیشت اس کو درست کرنے کے لیے ہم اللہ سے جنگ کرنے والے سسٹم کو قبول نہیں کر سکتے۔ سود کیا ہے؟ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے یا نہیں؟ پھر اگر سودی قرضوں کے ساتھ اس ملک کو چلانا چاہو گے، اللہ کی جنگ میں کبھی کوئی جیت سکا؟ فرعون، قارون، حامان بڑے بڑے آئے، بڑی بڑی پیسے جن کی جو ہے نا خزانوں کی چابیاں وہ اٹھانے والے کئی لشکر ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے خزانے باقی نہیں بچے، کلے باقی نہیں بچے، اقوام تباہ ہو گئی ہیں۔ اور معیشت کے اوپر جائیے، سورۃ القصص کو، سورۃ مزمل کو پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ جانتا، اللہ کہتا ہے بعض قومیں تھی جو اپنی معیشت کے اوپر اترا گئی تھی، اکڑ گئی تھی، لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑا تو ان کے قلعوں کا اور ان کی زمینوں کا کوئی وارث باقی نہ بچا۔ نحن الوارثین، ہم ان زمینوں کے وارث اللہ کہتے ہیں ہم خود ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصرہم واحفظہم پاکستان، اللہم انصرہم واحفظہم پاکستان، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔